Welcome students. Today here we discuss about the topic that is data communication that is based on computer network. Now here we discuss following things, that is data communication, components of data communication, data representation, data flow, distributed processing, and types of network, that is LAN, WAN, and other, that is MAN networks, and other things. Now first we discuss in data communication topic, that is 3 points: components, data representation, and direction of data flow. Now फर्स्ट इज कंपोनेंट्स एंड अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ डेटा communication, there are five basic components which are used in data communication, that is sender, medium, receiver, protocols, and मैसेज. पांच बेसिक कंपोनेंट जो हम यूज़ करेंगे किसी भी कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन को करने के लिए, जिसमें फर्स्ट वन जैसा भी डिस्कस हुआ और फिगर में भी देख सकते हैं, दैट इज सेंडर मशीन है, रिसीवर मशीन, एक मीडियम, एंड मैसेज, एंड प्रोटोकॉल्स मीन्स such type of rules which is used to make a data communication very responsible and effective. And one thing is more, that is medium is very important in data communication. Medium means that may be physical. It means we can say that is, it may be guided or unguided. Guided means there is some path, physical connection between the devices, between the sender and receiver. And another is unguided. Medium means there is no physical evidence between the devices, but we can say there is a transfer between between the devices. Between the devices, signal can transmit uh, by an air and other mediums. Now here we discuss next point, that is how we can make a data communication effective कैसे बनाया जाए. चार बेसिक पॉइंट्स की ज़रूरत है यहाँ पर इसको समझने के लिए, दैट इज डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइनर्स, एंड जिटर. डिलीवरी मीन्स डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी हो सकता है दैट राइट रेसिपिएंट्स के पास डिलीवरी हो कंटेंट की. एक्यूरेसी मीन्स डेटा मस्ट बी एक्यूरेट, देयर इज नो एनी anomalies or discrepancies between the sender receiver after transmitting of data. And timeliness is a very effective and important point. Another, that is, it means the data should be reach in time, on time, into the receiver. And the last point, that is jitter means uh, there is no fluctuation, there is no transmission rate can be down, up, and slow in between the transmitting of data. Transmission mode. Transfer mode means direct. We decide here how we can transfer the data. Means simplex, half duplex, and full duplex. अगर simplex की यहाँ पर बात करें, that is sender and receiver के बीच जो transmission होगा वो always uniquely one time same direction में ये ट्रांसफ़र डेटा का डिवाइसेस के बीच में होगा. डायरेक्शंस कभी भी चेंज नहीं होंगी. इट मीन्स सेंडर कैन नॉट बी कम्स इन कैटेगरी ऑफ रिसीवर. नाउ हाफ डुप्लेक्स में डिफरेंसेस हैं सिंप्लेक्स से. यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ डेटा कैन बी चेंज इन टाइम टू टाइम. मीन्स एक टाइम तक डेटा एक मशीन सेंड करेगी, दूसरी रिसीव करेगी. आफ्टर द टाइम इंटरवल हैज़ बीन completed, the direction of flow of data may be change. Means next time interval पर डिवाइस जो सेंड कर रही थी वो रिसीव करेगी, मीन्स रिसीवर की कैटेगरी में आ जाएगी.
ना फुल डुप्लेक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि ऑलवेज टाइम टी डायरेक्शन ऑफ डेटा बोथ साइड मूवमेंट में रहेगा। मीन सेंडर सेंड तो कर ही रहा है, उसी टाइम वो रिसीव भी कर सकता है। नाउ distributed processing. Distributed processing, a task is divided among multiple machines. डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हम टास्क को मल्टीपल मशीन्स के बीच में डिवाइड कर सकते हैं या करते हैं। यहाँ पर इसके तीन बेसिक फायदे दिखाई देते हैं, दैट इज़ फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, distributed database, security, encapsulation. Faster problem solving means with the help of this phenomenon, distributed process. In the distributed processing, we can divide the task, we can divide the problem in number of persons or machines. जैसे फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट आता है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो किया जाता है। तीसरा पॉइंट सिक्योरिटी इनकैप्सुलेंस मीन सिक्योरिटी वेरी कर सकती है डिवाइस टू डिवाइस, लॉगिन टू लॉगिन, मशीन टू मशीन, पर्सन टू पर्सन। हर मशीन्स हर पर्सन को हम सिक्योरिटी अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनकैप्सुलेट मैनर। Now, three basic points we can discuss in uh, network criteria, that is performance, reliability and security. Performance means transmit time and response time. दोनों ही ट्रांसमिट एंड रिस्पॉन्स टाइम कम होने चाहिए जिससे कि इंक्रीज कर जाए परफॉर्मेंस डिवाइस की। ट्रस्ट इन आवर नेटवर्क मीन्स हमारा नेटवर्क कितना रिलायबल है और अनऑथराइज एक्सेस हो पाता है नहीं हो पाता है, ठीक है। हम नंबर ऑफ पर्सन्स कितना सिक्योर करवा सकते हैं नेटवर्क को, ये हम रिलायबिलिटी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी मीन्स यहाँ पर एक अनऑथराइज एक्सेस तो रहेगा ही रहेगा। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी में, दैट इज़ कि हाउ वी कैन मेक आवर नेटवर्क सेफ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स या per person unit time, how we can remove the problems of our customers and other persons. Now the second another point, that is line configuration. Line configuration दो टाइप का हो सकता है, मीन्स how we can connect our devices, that is point to point and multi point। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है वो डायरेक्टली डिवाइसेस किसी एक फिजिकल पाथ की कैपेसिटी को शेयर कर सकती हैं। बिटवीन द टू डिवाइसेस ओनली वन एक्सेप्ट वन पाथ कैन बी अकर हियर। इन मल्टी पॉइंट लाइन कनेक्शन यहाँ पर एक पाथ नंबर ऑफ डिवाइसेस के बीच में शेयर किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि बैंडविड्थ कैपेसिटी ऑफ द चैनल कैन बी शेयर among the number of machines. Now types of network, तीन बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, दैट इज लैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि किसी भी सिंगल बिल्डिंग, एक फ्लोर, एक पर्टिकुलर कैंपस में डिफाइन किया जा सकता है। एक सिंगल टोपोलॉजी को डिफाइन करता है, एक लिमिटेड दायरे में ये डिस्कस किया जाता है। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नंबर ऑफ टोपोलॉजीज यहाँ पर मिक्स की जा सकती हैं, मीन्स नंबर ऑफ लैन मैन एक लिमिटेड दायरे में इसको हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मोर देन वन टोपोलॉजीज का कॉन्सेप्ट रहेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिस, एक सिटी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को देखा जा सकता है। जैसा हम देख सकते हैं कि जैसे दैट इज द केबल कनेक्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मैन, that is one main office can be distribute the services uh, um, in the city in different locations.
नाउ वैन जहाँ पर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ लैंड्स नंबर ऑफ मैन्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन such a manner that there is a no geographical limitations can be occurred. एंड वैन इज़ द कॉन्सेप्ट जहाँ पर किसी भी टाइप के लिमिटेड फिज़िकल कनेक्शंस या फिज़िकल लोकेशंस को यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो वेरी नहीं करेगी. That is the most effective example, that is internet, www, that is a world wide web, means overall connectivity can be uh, perform its connection with the help of this WAN concept. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वैन कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए हमें राउटर जैसी डिवाइसेस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो कि डिफ़ाइन करेंगी अलग अलग नेटवर्क की डेफिनेशंस को और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस एंड नेटवर्क को. थैंक यू.